So, hello everyone. Hope you're doing just super awesome. Give a pat on your back and say, I'm awesome. Fantastic. Good job. So, the thought for the today is in 3 words. How many words? Only 3 words, yes. And it really helps me to go whenever I'm in a transition, when it's up or down, it really helps me. These 3 words really keep my momentum really on. Do you want to listen those 3 words? So get your ears closed and listen very carefully. Keep the faith. Exactly, yes. That's what my teacher always says. Keep the faith. Always keep the faith on your own self and on the divine. The divine always has a better plan for us. Always remember that. Always remember that. Just keep the faith. Just keep the faith on yourself. Even if you're undergoing any turbulence, any problem, any situation, you will come up. Trust me. You will come up as a warrior because you are a warrior. You will come up. Just remember, keep the faith. Thank you. So the topic. So today I'm going to get you a tour of my own kitchen where I get a chance from where actually I get to eat amazing, delicious food with great energy. So let's take a quick look. तो इस किचन में हमने 3 सबस्ट्रेट्स मेजरली यूज किए हैं, जहाँ आपको दिख रहा होगा. सबसे पहला सबस्ट्रेट है द ग्लास, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वी लैक्ड ग्लास टू गिव इट अ डिफरेंट लुक एंड टू ब्रेक द मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए हमने उस ग्लास को डिफरेंट कलर के अंदर यूज किया है, एंड एस्थेटिकली ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द लुक ऑफ द एंटायर किचन. Second is the WPC MPC boards, which we have used wherever you can see this white color, in a little creamish color or silverish color. That's something is nothing but MPC boards के ऊपर हमने normal peel paint किया, जैसे मैंने previous videos में दिखाया. Plus ये है acrylic surface, acrylic solid surface, because this is for the kitchen top and we wanted it to look very seamless. इसकी seamless finish को attain करने के लिए हमने ये substrate use किए हैं. तो total 3 substrates हमने use किए हैं. क्या? सबसे पहला lacquered glass, that's in purple electric violet color. Second is the boards which we have used, and the third is the acrylic solid surface which we have used. Now let me show you how we have constructed, and let's go into the detailing part of the kitchen. Stay tuned. तो जो ये basically ये area है, this whole kitchen is designed in a way कि ये एक island kitchen का एक concept हमने लिया है, और इस island kitchen के concept के अंदर we have divided into few drawers as per the convenience, and we have used Blung Hafele के जो Inotex आते हैं, जो soft auto closing systems आते हैं, वही हमने use किया है, and it is working from last 3 years pretty well. अभी तक कहीं पे भी किसी भी यूनिट के अंदर, चाहे हम heavy weight भी यूज कर रहे हैं, इतने heavy weights के utensils भी इसके अंदर यूज हुए हैं, but there has been no problem till date, till now. I think nothing beyond it. और जो corners मैंने यूज किया, that is something to enhance the entire looks and also to give the comfort of taking it out. So these are the aluminum profiles which are used, and that is something is very important. So this makes this area in a complete self-explanatory. Now come on to the another side. So coming to the another side, that's the another part which is used as a working area, और इस working area को भी हमने करीबन 9 drawers के अंदर इसके bottom part को divide किया है. Same in a very similar way, very heavy utensils are being used, और हमने इसकी side detailing को जो है वो वही हमने यूज किया है Hafele का, जो ये side detailing को, और इसकी डिटेलिंग बहुत सिंपल है. हमने इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल्स यूज किए हैं, और ये सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ Inotex, which are being very popularly said Inotex. Blung Hafele के हमने यूज किए हैं, एंड these are the WPC boards जिसके ऊपर हमने plain PU पॉलिश करी है, and these are the aluminum profiles which we have used, and that's it. That's about it. And all these drawer systems are working pretty fine. In last 3 years there has been not even a single problem till date. अब अपर यूनिट्स की बात करते हैं, बिकॉज अपर यूनिट्स के अंदर WPC बोर्ड्स के अंदर लोगों को बहुत कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं या चैलेंजेस होते हैं, या कारपेंटर्स कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन उसकी देते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड दी स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ये भी Hafele का ही है सारा सिस्टम.
और लैकेड ग्लास एल्यूमिनियम प्रोफाइल के अंदर फिक्स करके 4mm लैकेड ग्लास को एल्यूमिनियम प्रोफाइल के अंदर फिक्स करके हमने इसको यूज किया है. सो इन दी टॉप 2 पार्ट्स वी हैव यूज्ड दी ग्लास सो दैट अगर कुछ हैवी भी डालना हो तो हम इस पे डाल पाए, बिकॉज ग्लास डेफिनेटली बेंड नहीं करता है. तो जहां पर भी आपको हैवी मटेरियल रखना है आप उसको टॉप के 2 सेक्शंस के अंदर रख लीजिए, और जो बॉटम का पार्ट है इसमें कोशिश करिए थोड़ा सा वेट कम आए ताकि ये सैग ना करे. दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाला जो स्पेसिफिकली एरिया है, दिस हैज टू बी ओनली मेड नथिंग लेस देन 650 डेंसिटी का जो बोर्ड आता है उससे लेस कभी भी यूज मत करिएगा, नहीं तो ये सैग करेगा और फिर आप कहेंगे कि WPC बोर्ड सैग करता है, बेंड करता है. वो बेंड नहीं करता, बट राइट प्रोडक्ट हैज टू बी यूज्ड इन द राइट एप्लीकेशन. अगर वो सही प्रोडक्ट सही एप्लीकेशन में यूज हो रहा है विद प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड डिटेलिंग, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. अब मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ. इसके अंदर भी हमने यही एग्जैक्टली किया है. एंड आप देखिए टॉप 2 के अंदर हमने ज्यादा वेट यूज किया है जस्ट बिकॉज ग्लास की शेल्फ है. यहाँ पर वो वेट इजीली मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज स्क्रू होल्डिंग हमारे बोर्ड्स की बहुत अच्छी है. बट इस वाले जो बॉटम सेक्शन है उसके अंदर भी मेक श्योर कि हम लोग थोड़ा सा वेट कम रखें सो दैट इट शुड नॉट सैग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस हमने इसको सिंगल नहीं किया, हमने यहाँ पर जब यूज किया तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ज्वाइन कर लिया है और इसको यहाँ से स्क्रू कर दिया सो दैट ये 2 शेल्फ्स, ये 2 वर्टिकल मेंबर्स को एक दूसरे का प्रॉपर पूरा सपोर्ट मिले. दैट्स अबाउट इट. आई थिंक ये बेसिक डिटेलिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, which always should be kept in mind. इसके अलावा this is something for the normal utilities and normal micro food stuffs, and I think it can be used. इसके अंदर आपको glass shells use करने because area कम है तो आप कैसे भी use कर सकते हैं. If you want to use the fixed one or you want to use the glass one, there is no problem in that. Same वही proper PU polish है. Going to that corner of the side, I think in this corner this is something is the most important part of of a kitchen. So इसके light on कर देते हैं. So exactly. So let me go to that area. I think which for a women is very very important. ये एक बहुत एक important area होता है और बहुत sensitive pain area है ये आज के टाइम के किचन्स के अंदर, इंडियन किचन्स के अंदर जो रोज धुलती हैं जहाँ इतना वॉशिंग होता है. एंड दैट वॉशिंग इज ऑल्सो डन इन होम ओनली, वो कहीं बाहर नहीं होता, वहीं किचन के अंदर होता है. तो दिस इज आवर वॉशिंग एरिया एंड इट्स बीन फॉर लास्ट 3 years. अभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस वॉशिंग एरिया को जितना मर्जी इसको पानी में डालिए, जो मर्जी करिए, एक्सटेंसिवली यूज करिए. यहीं पे ही हम लोग बर्तन धोते हैं, यहीं पे हमारे सारे काम होते हैं. एवरीथिंग इज डन हियर ओनली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. एंड वी आर एब्सोल्युटली एट एन ईज. My mother, my wife, everyone is at ease. They have full sense of happiness and they are never in pain कि हम लोग यहाँ पर अगर बर्तन धोएंगे तो क्या होगा, कहीं हमारे ये यूनिट्स खराब तो नहीं हो जाएंगे, हमारा फर्नीचर, हमारा किचन खराब तो नहीं हो जाएगा. एंड दैट इज समथिंग is the biggest sense of satisfaction which you can give to your wife or your mother. It's very very priceless, trust me. So going back to that side of the kitchen, let me just show you how does that side of my kitchen looks like. So coming to this part of the kitchen, this is something inbuilt microwave unit and an OTG unit which we have used, and also another in a very similar way we have used in WPC instead of lacquered glass में हमने इसको थोड़ा सा monotony को break करने के लिए यहाँ पर फिर वो use किया है. Plus इसके अलावा this is again for micro utilities, for the minor food stuffs, we have divided that into normal glass shells. And this is something is a very very important area. ये important area क्यों है? Because हर एक किचन के साथ एक घर के अंदर एक स्टोरेज यूटिलिटी कहीं ना कहीं चाहिए होती है. बट इन दिस एरिया वी जस्ट हैड दिस मच ऑफ स्पेस, मतलब हार्डली 2.5-3 फीट का स्पेस था. तो इस 3 फीट के स्पेस को हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया कि अगर हम इसको अगर हम ओपनेबल बनाते तो वी वुड हैव द स्पेस और कम हो जाता. तो इस स्पेस को कम ना हो उसके लिए हमने इसको पूरा 4 सेक्शंस में वार्डरोब्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया और इसके अंदर हमने सारा अपना स्टोरेज यूज कर लिया है इस स्पेस को बिल्कुल. और सेम जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि आपको इसकी बैक साइड के ऊपर क्या यूज करना है, प्रोफाइल स्ट्रेटनर. दैट्स इट. उस प्रोफाइल स्ट्रेटनर का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरी वार्डरोब्स बनी हुई है, बिल्कुल क्लीन फिनिश में है. जस्ट PU पेंट आपको इसके ऊपर करना है एंड दैट्स अबाउट इट. कुछ भी हमने इसके ऊपर नहीं किया, कोई लैमिनेशन नहीं किया, इसके ऊपर कोई विनियर नहीं लगाया, बिल्कुल इसको रॉ छोड़ रखा है ताकि मिनिमलिस्ट लगे, सिंपल लगे, थोड़ा सटल लगे. बिकॉज किचन है, यू हैव टू स्टे थ्रू आउट द डे, यू हैव टू स्टे थ्रू आउट द डे इन दिस एरिया. सो इट हैज टू लुक वेरी कूल एंड वेरी वार्म.
So that's it about it. I think this video would really help you if you're building your kitchen, help you to understand कि आपको किन किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, WBC बोर्ड्स को कैसे यूज करना है, डिटेलिंग का क्या ध्यान रखना है, क्या आप सरफेस ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते. That's about it. I think this will really make your decision very easy. So if you find this video to be useful, do like it, click the button below, subscribe it, click the button below, and comment. Leave your valuable comment because it means a lot to us. Thank you so much for your precious time. Once again, signing off. Goodbye.